Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about marketing management, features and functions. In today's class, we are starting importance of marketing management. As we know, marketing management means a process which starts before the production of goods and services and continues till the satisfaction of consumer. It includes market analysis, product design and development, marketing communication, packaging, labeling, branding, warehousing, financing, etc. So these are the functions of marketing management. Now the topic is importance of marketing management. According to a businessman or an economy, there are so many advantages of marketing management. The first of all, we divide importance of marketing management into 4 parts. The first advantage goes to businessman or business organization. The second is for consumers. The third is society. And the last is nation. It simply means कि जो डिवीज़न है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसकी 4 कैटेगरीज हमने डिवाइड की है। बिजनेसमैन को, कंज्यूमर्स को, सोसाइटी को और नेशन को। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवांटेजेस टू द बिजनेसमैन। लाइक what is here are some advantages of businessman. The first one is, we start the book. In modern times, no organization can develop without an effective marketing system. That means हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बिना मार्केटिंग मैनेजमेंट के डेवलप नहीं कर सकती है. In an era of cutthroat competition, the survival, development and success of a business depends upon the quality of their marketing system. As we know, the competition level is very high. Cutthroat competition है, तो ऐसे केस में मार्केटिंग मैनेजमेंट करना ही करना होगा सर्वाइवल के लिए, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह आ जाती है. नाउ द फर्स्ट एडवांटेज टू द बिजनेसमैन और बिजनेस एंटरप्राइज इज सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन. ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस बात को कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बाय वे ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. द फर्स्ट इज, in the present competition scenario, the organization can survive only through its marketing activities. Any firm can make an effective marketing strategy and compete successfully with other players. एक सीधी सी बात कही कि हम मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे हैं, हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, देन वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ कंज्यूमर. Then we are using best methods of distribution, when we are doing best packaging of goods so that we can easily attract the consumer. So there are so many factors of marketing management which helps the business organization to compete with the competitors. Is it clear? Now the second is basis of planning. As we know, the first function of marketing management is marketing analysis, in which we find out the taste and preference of consumer, income level of consumer, ideology of consumer, society expectations, competitors policy, product, technology, government policy. So on this basis analysis, we can easily or we can make an effective plan for future. Is it clear? Marketing is a process which is related to the market and consumers. Therefore it helps in gathering knowledge about consumer needs, interests, desires, etc. Already we have discussed in the functions of marketing management. Is it clear? So that we can easily focus on consumer needs and desires, and by satisfaction of consumer needs and desire we can easily
we can easily survive in the competition, and we can easily, or we can make the effective plans. Next is growth in sales. Marketing management helps in market and consumer analysis, and through which knowledge regarding changing interest of consumer needs and fashion can be gained. As we know, हम लगातार एनालिसिस करते रहते हैं. दैट मीन्स कि मार्केट में कंज्यूमर के जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो जो टेस्ट में चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, वो हमें तुरंत मिलता रहेगा. और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स की जो चीज़ कंज्यूमर को पसंद होती है, जो चीज़ कंज्यूमर के डिज़ायर होती है, अगर हम वही गुड्स अवेलेबल करवाएंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट की, जिससे हम हमारी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ मोर प्रोडक्शन. एज वी नो, इफ अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसे पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना होगा. जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होंगे, उतना मार्केट एरिया बढ़ेगा हमारा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट. ड्यू टू एन इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हेन अ फर्म इज एबल टू जनरेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट प्रोडक्शन, it ultimately results in reduced per cost. As we know, like हम बल्क में गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सेलर से, प्रोड्यूसर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ज़्यादा डिस्काउंट देगा, क्यों मिडिल मैन नहीं है अगर हम बल्क में क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हैं. तो सेम केस हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू होगा. हमने पढ़ा सेल इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो भी हमारी कम हो जाएगी. जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग हमने ले रखी है जिसकी कैपेसिटी है, जिसमें हम 1000 यूनिट पर यूनिट, या हमारे पास एक मशीन है जो कि 1000 यूनिट पर डे बना सकती है. अगर हम 500 ही बना रहे हैं, डिमांड इतनी है, दैट मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ मशीन. हमारी कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर हम 1000 पर बनाएंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट. जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, तो हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी इजीली इंक्रीज हो जाएगा. और उसका एक रीज़न हो रहा है कि जस्ट हमने इससे ऊपर वाला पढ़ा कि अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो इट ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्रीज द प्रॉफिट. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन. ध्यान से ये समझना, a producer cannot sell directly products to the consumers. Reason being, consumers are scattered, फैले हुए होते हैं. ये सिंपल सी बात है. तो ऐसे केस में मिडिल मैन होते हैं होलसेलर और रिटेलर्स, जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का, अवेलेबल करवाने का काम करते हैं. अगर वो इंटरेस्ट लेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे, तो ही तो हमारी सेल इंक्रीज होगी. सिंपल सी बात है कि अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे हमारे प्रोडक्ट को सेल करने का, तो क्या हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी? तो अगर हम एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, जहां एजेंट अच्छे होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन हो रहा है अच्छा, ठीक है, मार्केट से डिमांड आ रही है, तो वो लोग भी खुश हैं कि हाँ उनका भी प्रॉफिट पार्ट ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से हम मिडिल मैन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. क्रिएशन ऑफ गुडविल. गुडविल तो आप लोग जानते ही, ठीक है, कि जब कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं, रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हैं, राइट टाइम राइट प्लेस पर मिल रहे हैं, तो इससे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, जो फेम है, वो भी इंक्रीज़ होगा. और गुडविल जो है वो हमारे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में, हमें प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन. ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे हो रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेस हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो इसका बेसिक फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे बिज़नेस को हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी दे सकते हैं. एक ब्रांच से 2 ब्रांच, एक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर हम लोग जा सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, इफ़ वी आर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर, अगर हमारा कंज्यूमर हमसे खुश, लाइक in an effective marketing system, all the activities undertaken considering the satisfaction of consumer as the basis. consumer का satisfaction को base माना जाता है. therefore modern marketing also helps in fulfillment of social objectives and responsibilities. social responsibilities और पूरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे को आगे लेकर जाने में हेल्प करती है. सक्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड. ध्यान से समझना,
जिस तरीके से हमने एक लोकल मार्केट का एनालिसिस किया, जिस तरीके से हमने लोकल कंज्यूमर की नीड्स, उसकी आइडियोलॉजी, उसका सोच, इनकम लेवल, कॉम्पिटिटर सबके बारे में जाना, वैसे ही यही एक एनालिसिस हम इंटरनेशनल मार्केट का पता करेंगे। वहाँ के कंज्यूमर की नीड, डिज़ायर्स पता कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी पता कर सकते हैं। तो उस एनालिसिस के बेसिस पर हम इफेक्टिव प्लानिंग करके इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम आगे लेकर जा सकते हैं। दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द एडवांटेजेस टू द बिजनेसमैन और एंटरप्राइज। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इम्पोर्टेंस फॉर द कंज्यूमर, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर बिजनेस करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स एक कंज्यूमर को अवेलेबल होंगे, कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपके हिसाब से। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्वालिटी गुड्स। हमने पता है कि मार्केट में वही कंपनी सर्वाइव कर पाएगी जो कि कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स देगी और रीजनेबल प्राइस चार्ज करेगी। ठीक है, दैट मीन्स चीपर प्राइस पर गुड्स, क्वालिटी गुड्स जो अवेलेबल करवाएंगे, कंज्यूमर उसी के फेवर में जाता है क्योंकि कंज्यूमर अपनी सेविंग्स को ही प्रेफर करेगा। ठीक है, अब क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है तो हमने कहा था कि जो कंपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगी उसकी कॉस्ट कम होगी, तो कॉस्ट कम होगी तो वो रीजनेबल प्राइस भी रख सकते हैं, जिसका बेनिफिट सीधा सीधा कंज्यूमर को मिलता है कि क्वालिटी गुड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी काम किया जा रहा है उसमें सबसे पहला काम होता है कंज्यूमर की डिज़ायर पता करना, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस को पता करना। दैट मीन्स कंज्यूमर की जो एक एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर की जो नीड्स है, उन्हें बिजनेसमैन पूरी करेगा जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नॉलेज। एडवर्टीजमेंट का, ब्रांडिंग का, जो प्रमोशन का जो काम है, इसके थ्रू क्या होगा कि एक कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी एक मार्केट की। दैट मीन्स कि मार्केट में कौन कौन सी क्वालिटी के गुड्स आ रहे हैं, किस किस प्राइस पर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है, कौन अवेलेबल करवा रहा है, उस हर एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन, फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है, साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या है, सारी नॉलेज एक कंज्यूमर के पास अवेलेबल हो जाती है एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशन के थ्रू, जिससे कंज्यूमर की नॉलेज भी इंक्रीज हो जाती है। इससे वो डिसीजन ले सकता है, इससे वो अपने हिसाब से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। एज वी नो, कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट सेटिस्फेक्शन क्या करना है, मैक्सिमम करना है। सो इन दिस केस क्वालिटी गुड्स खरीदेगा रीजनेबल प्राइस पर। ठीक है, तो ये जो पॉसिबल है, ठीक है, उसकी पसंद के कलर, डिज़ाइन के प्रोडक्ट उसे अवेलेबल हों। ठीक है, तो जिससे उसकी नीड भी पूरी हो जाए, तो इसके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प करता है। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो लिमिटेड सेलर्स होंगे जो अपनी इच्छा से जो मन में आ रहा है वो काम करेंगे, जो गुड्स देने चाहिए वो नहीं देंगे। क्यों? मन मर्जी चलेगी, कंपटीशन नहीं है। बट इन केस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हम कंज्यूमर की डिज़ायर, नीड का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा ये कि कंज्यूमर को कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, जिससे कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता रहेगा। इज इट क्लियर? आफ्टर सेल सर्विसेज, हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसा नहीं है कि एक प्रोड्यूसर की, मैन्युफैक्चरर की या सेलर की जिम्मेदारी गुड्स बेचने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। नहीं, हम आज के टाइम देखते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज का चलन बहुत ज़्यादा है। लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, आपने सुना होगा 24/7 आवर्स अवेलेबल है कस्टमर केयर सर्विसेज। प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे 1 रुपये का ही आप शैम्पू का शैशे क्यों ना खरीद रहे हो, उसके ऊपर कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर लिखे हुए रहते हैं। आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो फ्री डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी और फ्री इंस्टॉलेशन, गारंटी, वारंटी, ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज भी देकर कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, लाइक इसमें दे रखा है अवेयरनेस अबाउट मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाएगी बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, बाय वे ऑफ सेल्स पर प्रमोशन। ठीक है, मार्केट इन्फॉर्मेशन का ये है कि कोई भी सेलर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम। मार्केटिंग से हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं
ठीक है। वैसे आपकी बुक में वो नहीं था पार्ट, बट मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतने ही गुड्स राइट टाइम और राइट प्लेस पर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट प्लेस। सेम चीज़ है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, दोनों को राइट टाइम और राइट प्लेस पर अवेलेबल करवाना, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है बाय मेकिंग अवेलेबल द डिजायर्ड प्रोडक्ट एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस इन एडिक्वेट क्वांटिटी। तो मार्केटिंग से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। एंड कस्टमर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एक इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम से कंज्यूमर को कम काम करना पड़ता है, कम मार्केट में घूमना पड़ता है, ठीक है, उसको क्वालिटी गुड्स मिल ही रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट बना रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द इम्पोर्टेंस टू द businessman and to the consumers. Is it clear? So next two part will be discussed in the next class, student. Thank you, students.